ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 6th ਮੇ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਵਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਸਕ 1 ਬਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਲਦੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਰੀ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਕੀਪ ਟੂ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਆ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐਂਡ ਕੀਪ ਟੂ ਇਟ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਲੈਂਥੀ ਸੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲੀਡਸ ਟੂ ਅ ਮੋਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈੰਗ ਵਰਕ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫਾਈੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਾਟ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਪੀਪਲ ਡੂ ਇਨ ਔਰਡਰ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸੈਟਿਸਫਾਈੰਗ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਕੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪੈਸੇਜ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਰਿਟੇਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟਰਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇਜ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਸਕ ਦੀ, ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਦੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਸੀ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇਹਦੀ ਰੀਫਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੀਵ ਇਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥ ਇਨ ਅਰਲੀ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੀਪ ਟੂ ਇਟ। ਕੀਪ ਟੂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਲੀਵ ਇਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਜੋਬ ਐਟ ਐਨ ਅਰਲੀ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਐਨ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਫਰੇਸਿੰਗ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਆਈ ਟੋਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਸੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸੈਡ ਨੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈंड ਮਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਮ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਪੀ ਵਰਕ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈंड ਮਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਮ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਪੀ ਵਰਕ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਥੀਸੀ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਪੈਰਾਫਰੇਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ
गल करांगे BP1 एंड BP1 दे विच तुसीं क्वेश्चन का रिप्लाई करना फर्स्ट वाले का वट एक्सटेंड डू यू एग्री विद दिस व्यू, ठीक है, तुसीं इस व्यू के नाल एग्री हो किस हद तक, ठीक है, तो उस चीज़ का तुसीं रीजन दसना है। एग्री हो मीनस आप ऑलरेडी मैंशन कर दिता तीसरी लाइन दे विच कि यस एग्री हाँ, टोटली एग्री हाँ, क्यों एग्री वो पिछे का तुसीं BP1 दे विच रीजन दसोगे, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड BP दे विच गल करोगे अदर वेज की जिहड़े कि सैटिस्फैक्शन दे सकते हैं वर्क लाइफ दे विच, ठीक है। ओके तो आप स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विद स्टार्टिंग कनैक्टर लगाया टू बिगिन विद द मेन रीजन वाई पीपल गेट सक्सैस, ठीक है, वाई क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस है अपने को। द मेन रीजन वाई पीपल गेट सक्सैस बाई चूजिंग कैरियर पाथ इन देयर अर्ली डेज इज़ की है वो फर्स्ट मेन रीजन की है इज़ चिल्ड्रन कैन चूज देयर ड्रीम जॉब बाई गैटिंग मोटिवेशन फ्रॉम देयर ट्यूटर एज वेल एज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कि अर्ली डेज के की आ जो चाइल्ड कोई डिसाइड करता है, ठीक है, तो वो अपने की टीचर की हैल्प लै लैंदा, पेरेंट्स की हैल्प लै लैंदा कोई भी करियर जो डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे की होएगा तो अपने को आ गया वो आप एक्सप्लेनेशन के दसना है कि किस तरीके इसका बेनीफिट है आपको, ठीक है। टू एक्सप्लेन इट इफ स्टूडेंट्स चूज देयर कैरियर, ठीक है, अगर वो कैरियर जो अपना चूज करनगे अर्ली डेज के दैन देयर माइंड विल बी फिक्स टू अचीव इट, ठीक है, तो उन्होंने माइंड जो फिक्स हो जाएगा अर्ली डेज के कि वो इसमें अचीव करना है। मोर ओवर इंडिविजुअल हैव सैटिस्फाइंग एंड हैप्पीएस्ट लाइफ बिकॉज ऑफ एक्यूरेट डिसीजन। एक्यूरेट डिसीजन हूँ आप क्यों लिखा बिकॉज आप पेरेंट्स एंड जोड़ा की है टीचर्स की हैल्प ली है ना, दैट्स वाई की है एक्यूरेट डिसीजन है कि वो जो इंडिविजुअल है वो सैटिस्फाइंग जो सैटिस्फैक्शन लै सकते अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट लाइफ जी जी सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्यूरेट डिसीजन, क्योंकि उन्होंने एक्यूरेट जो डिसीजन लिया मतलब कि एक्यूरेट करियर पाथ चूज किया अपने लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हूँ इसकी एग्जाम्पल देवांगे अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 7 आउट ऑफ 10 पीपल बिकम सक्सैसफुल हू चूज देयर पाथ इन अर्ली डेज। तो आप दसता कि 10 के विचों 7 की गल करिए अगर वो की आ सक्सैसफुल ने जिन्होंने अपने अर्ली डेज के पाथ जो चूज किया, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट वुड बी हैल्पफुल टू गैट सैटिस्फैक्शन इन वर्क लाइफ। एक ही आ वो कहते कि हैल्पफुल है सैटिस्फैक्शन अपनी वर्क लाइफ के सैटिस्फैक्शन लैंदे ने। तो हुण इत्थे तुहानूं मैं टास्क रिस्पॉन्स की गल दस दी है कि तुसीं किद्दां अपना जो टास्क रिस्पॉन्स जो अचीव कर सकते, ठीक है। अपने को क्वेश्चन हैगा टू वट एक्सटेंड डू यू एग्री विद दिस व्यू, ठीक है, तुसीं अपने इस व्यू के नाल किस एक्सटेंड तक एग्री हो, मीनस तुसीं दसता टोटली एग्री हो। हुण इहदे पिछे उन्होंने कुछ नहीं किया कि तुसीं रीजनस दसो, ठीक है, सिंपल तुसीं एक रीजन दस सकते हैं जिद्दां आपां BP1 दे विच एक रीजन दस दिता, ठीक है, एक पॉइंट नाल थोड़ा चल जाएगा। बट अगर तुसीं नैक्सट जिहड़ा अपने कोल क्वेश्चन है उहदी गल करो तो थोड़ा एक आइडिया दे नाल नहीं चलेगा, मतलब तुहानूं ऐड करने होणगे 2 आइडिया BP2 दे विच। वो किद्दां देखो वट अदर थिंग्स, ठीक है, हुण उन्होंने अदर थिंग्स पूछा, अगर कोई हुंदा कि वो वे अदर वे कह देंगे है ना जां अदर थिंग कह देंगे, बट हुण उन्होंने अपने पूछा वट अदर थिंग्स कैन पीपल डू, ठीक है, किहड़ियां होर जिहड़ियां थिंग्स कर सकते हैं। फिर ट्राई करो कि तुसीं एटलीस्ट 2 आइडियाज़ जिहड़े ऐड कर दो BP2 दे विच। BP1 एक चल जाएगा बिकॉज उन्होंने कोई रीजनस नहीं पूछे है, ठीक है, आप अपनी मर्जी नाल जिहड़ा टोटली एग्री उहदे पिछे दा एक रीजन दस्सिया है, ठीक है। इस दे नाल की है थोड़ी टास्क रिस्पॉन्स जिहड़ा आंदा है अगर तुसीं एक आइडिया दे देंगे तो कितने कितने जो टास्क रिस्पॉन्स से इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तुसीं स्टेटमेंट देख के कर लेना जिद्दां प्रॉब्लम सोल्यूशन आएगा। अगर प्रॉब्लम्स पूछियां दैन तुसीं 2 दसो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम पूछी सिंपल एक नाल भी चल जाएगा। इदां ही सोल्यूशन पूछा सोल्यूशन तो एक दे दो, अगर सोल्यूशनस पूछा दैन 2 दे दो, ठीक है। तो आइडियाज़ तुसीं स्टेटमेंट नूं देख के जो आंसर करने होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये होंदा गा कि मैं एक BP दे 2 आइडियाज़ पाइए कि एक आइडिया पाइए 3 आइडियाज़ पाइए, ठीक है, तो उस तरीके नाल एंड BP जो 3 तुसीं बनाने हैं, ठीक है, 70-30 ऐसे करते हैं तो उस चीज़ को करो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। बट उहदे विच की हैगा तुसीं ये चीज़ देख लो कि ऐसे जो ओवर लेंथ ही ना हो, ठीक है, एलैबोरेट भी वधिया कीता होवे बट फिर भी कंडीशन की है कि ओवर लेंथ ही ना हो, ओके। लेंथ भी जी ओवर लेंथ है वो भी इफेक्ट करती है थोड़े स्कोर पर, ओके। हुण आपां सैकेंड क्वेश्चन का जो रिप्लाई करते हैं, सैकेंड क्वेश्चन के विच आपां वेज दसने हैं किहड़े होर आ जिहड़ी कि सैटिस्फैक्शन दे सकदे आपां नूं वर्क लाइफ के विच, ठीक है। आइडियाज़ भावें 2 पाओ, ठीक है, BP1 एंड BP जिद्दां हुण BP1 दे एक पाया BP2 2 पाया, बट ट्राई करो कि लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होवे दोनों BPs की, ठीक है। हाउ एवर एक कनैक्टर यूज़ किया हाउ एवर
देर आर न्यूमरस वेज, ठीक है, कि होर भी काफ़ी वेज ने इन ऑर्डर टू बिकम सैटिस्फाइड विद प्रोफैशन, ठीक है, कि प्रोफैशन के नाल सैटिस्फाइड होना काफ़ी ये पिछे वेज ने, ठीक है। इन ऑर्डर टू होंदा कंपलैक्स सेंटेंस अपने को, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला की है पीपल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि एक होर देना है, ठीक है। पीपल शुड चूज एन इंटरस्टिंग जॉब टू गैट सैटिस्फैक्शन इन देयर वर्क लाइफ, ठीक है, कि एक परसन नूं चाहिदा हैगा कि वो इंटरस्टिंग जॉब चूज करे। आप एक होर भी जिहड़ा वेज दसना है जिहदे नाल कि सैटिस्फैक्शन मिल जाए। तो आपां की दिता हैगा फर्स्ट पॉइंट कि लोकां नूं चाहिदा हैगा कि वो अपनी एक इंटरस्टिंग जॉब चूज करनी चाहिए है, ठीक है। क्यों इंटरस्टिंग करनी चाहिए वो आप अगे दसांगे, ठीक है। टू इलुस्ट्रेट इट, ठीक है, इनू एलैबोरेट करन जा रहे हैं। पैशन टूवर्ड्स प्रोफैशन इज़ की कंसीडरेशन वाइल चूजिंग अ जॉब बिकॉज इट्स गिव्स इनर हैप्पीनैस टू एम्पलॉयज़, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ कि ये जोड़ा इनर हैप्पीनैस दिंदा, क्यों उहदा आपां जिहड़ा दस दिता हैगा आंसर दे दिता कि क्योंकि इनर हैप्पीनैस दिंदा वा इंपलॉयज़ नूं, दैट्स वाई ये की कंसीडरेशन है, ओके। उस तो बाद आपां जिहड़ा नैक्सट पॉइंट देना टू वेज देने, आपां इहदे विच एग्जाम्पल नहीं ऐड कीती इत्थे बिकॉज अपना जे एग्जाम्पल ऐड कर दिता जिहड़ा ऐसे हैगा ओवर लेंथ ही हो जाना, ठीक है। एंड बीपी की लेंथ जिहड़ी इक्वल नहीं रहनी सीगी, ठीक है। दैट्स वाई आपां जिहड़ा की एग्जाम्पल इत्थे मिस कर दी, एलैबोरेशन कर दी, इस तरीके नाल ही आपां नैक्सट दा करांगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इस तो इलावा की आ इन दिस कॉम्पीटिटिव एरा, ठीक है, इस जो कॉम्पीटिशन वाला एरा हैगा पीपल शुड, ठीक है, लोगों को की चाहिए हैगा अटेंड द कोर्स, ठीक है, अटेंड कोर्स अटेंड कोर्स इन ऑर्डर टू आएगा, ठीक है, इतने शुड अटेंड द कोर्स इन ऑर्डर टू इनहांस देयर नॉलेज एज वेल एज स्किल्स टू बिकम मोर स्किलफुल इन देयर वर्क, ठीक है। तो इतने जड़ा की मिसटेक है, शुड अटेंड द कोर्स, ठीक है, कि परसन जो कॉम्पीटिटिव एरा हैगा शुड अटेंड द कोर्स इन ऑर्डर टू इनहांस देयर नॉलेज एज वेल एज स्किल्स, ठीक है, कि उन्होंने अपनी जी नॉलेज इनहांस करने एंड जोड़ा की है स्किल्स इनहांस करने की है कोर्स जोड़े अटेंड करने चाहिए है, ठीक है। हुण इहदा रिजल्ट की निकलेगा जो अगर वो कोर्स अटेंड करनगे स्किल्ड वर्करस आर मोर सैटिस्फाइड विद देयर जॉब्स एज कंपेयर टू अनस्किल्ड। अगर अनस्किल्ड के नाल कंपैरिजन करिए तो जोड़े स्किल्ड वर्कर ने वो ज़्यादा सैटिस्फाइड ने, ठीक है, अपनी जॉब के नाल अनस्किल्ड के कंपैरिजन के विच। दैट्स वाई कि उन्होंने कोर्स जोड़े इदां अटेंड करने चाहिए जिन्हां दे नाल उन्हां दी स्किल एंड जी नॉलेज की इनहांस हो सके, ओके। उस तो अगे आप कनक्लूजन की गल करते हैं। टू कनक्लूड इट, नो डाउट पीपल कैन लिव सैटिस्फाइंग वर्किंग लाइफ बाय चूजिंग कैरियर पाथ अर्लीयर, ठीक है, कि वो अर्लीयर अपने कैरियर पाथ चूज़ करके ही एक सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ जी जी सकते हैं, ठीक है। बट देर आर अनदर एम्पल वेज, ठीक है, आप कहते कोई शक नहीं है कि अगर वो करियर अपना अर्ली एज के चूज़ कर लेंगे तो एक वधिया लाइफ जी सकते हैं, सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ जी सकते अपने वर्क के। बट की होर वेज भी जोड़े अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट देर आर अनदर एम्पल वेज, ठीक है, एम्पल होंदा काफ़ी मैनी वेज अवेलेबल टू फाइंड अ सैटिस्फैक्शन इन वर्क लाइफ एज मैंशन इन द एसे, कि होर भी जोड़े काफ़ी वेज ने जोड़े कि अपने करते हैं सैटिस्फैक्शन अपन प्रोवाइड करते हैं जिदा कि अपने एसे दे मैंशन है, ठीक है। तो अपने एसे दे ऑलरेडी मैंशन है कि दो व्यूज़ ने, ठीक है, एक तो अपन जो स्किल्स सीखने के लिए कोर्स अटेंड करने चाहिए, एक इंटरस्टिंग जॉब फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। एंड दोनों वेज बेनीफिशियल है सैटिस्फैक्शन लैन के लिए। तो ये सी अपना फुल जो सैंपल आंसर। स्टेटमेंट काफ़ी ईजी सी बट काफ़ी जो स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज हो गए, ठीक है, क्योंकि डायरैक्ट टाइप नहीं लिखी सी किस वाली सी, बट जो एग्री एंड डिसएग्री वाले टाइप के ही अपना ऐसे सीगा, ठीक है। तो आई होप अज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।